कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू यूजीसी नेट 24/7। मैं हूं ऐश्वर्या पुरी, योर गाइड एंड मेंटोर फॉर इंग्लिश लिटरेचर। एंड एज प्रॉमिस्ड, अपने टॉपर्स टॉक की सीरीज में मैं आगे ले आई हूं अपनी एक और स्टूडेंट को। और मैं आपको खास बात बता देना चाहती हूं, इन्होंने सेल्फ स्टडी से इस बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है 99.96 परसेंटाइल से। आई एम श्योर ये हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन से रह गई होंगी 100 परसेंटाइल लेने में, यानी नेशनल टॉपर बनने में। स्टिल आई डू फील पर्सनली, आई थिंक शी वुड बी नेशन वाइड टॉप 10 रैंक्स में ये जरूर होंगी। ऑल्दो नेट में आज हमारे पास रैंक्स दिखाने का कोई तरीका नहीं है, बट वी कैन जस्ट कीप एन एस्टिमेट। आई एम श्योर शी इज देयर, and it was so wonderful the first time I got to have a word with her. Her energy was so charming, it was so contagious that it just got transferred right to me. And today I feel so proud इनको आप सबके सामने introduce करके. So Afnan, welcome to the session. कैसा लग रहा है आपको? Thank you so much, ma'am. I'm glad. I think the happiness is just double talking to you right now. JRF obviously has given me so much. I think the exam, obviously, the number of hours it took to reach this destination, it's, I think, all worth it once you've achieved and you finally see the result and it shows that qualified for JRF and assistant professor. I think that's worth every hour, every minute, every second you spend doing the hard work. That's true. Taylor Swift का एक song है Blank Space, उसकी एक line है that if the high was worth the pain. Pain, right? It's definitely worth the pain, I think. And to everyone watching here, I think, I mean, every one of us obviously thinks कि हमें qualify करना ही है, but really the other side is just another world. I think it's beautiful. It's freedom here. It's just really happiness here. And what about your parents? I mean, tell me what was their reaction, because let me tell you about Afnan also. She's currently pursuing her PhD from the very reputed, the very revered Aligarh Muslim University. And ये अभी pursue करते करते उन्होंने अपना JRF ले लिया है। And अब क्योंकि ये JNK से हैं, अपने घर से दूर रह रही हैं, तो मुझे बताइए आपना, जब आपने अपने घर पे सबसे पहले अपने अम्मी अब्बू से बात की, तो उनका क्या instant reaction था? So I mean, living in hostel, I've been living in hostel since 10 years now, and कभी-कभी जब घर जाना होता है तो I mean, I would always think कि ये time मुझे अम्मा अब्बा के साथ ही spend करना है. I don't want to spend this time studying. But then when the June exam got cancelled and we got another month to study, though frustrated, exhausted, I think I took it on myself that I'm going to crack this no matter what happens. तो इस बार जब I went home, I was like, नहीं भाई, ठीक है अम्मा अब्बा हैं, मगर the happiness that वो उनको भी मिलेगी जब मैं qualify कर लूंगी एग्जाम. So I spent every minute studying there. So when the result came, I immediately called Abba and I was like, Abba, the result is out and I've qualified for JRF, and I started crying immediately. The feeling is surreal. I mean, he was so happy. He was laughing, smiling, crying. He was breaking down. But then again, and he asked me कि अच्छा ये खुशी के आंसू हैं जो आप रो रही हैं अब? I was like, I don't know अब्बा क्या है ये, but the feeling is just surreal. ब्यूटिफुल. एंड मैं आप सब लोगों को, जैसे इन्होंने कहा कि आपको ये उस पार की दुनिया दिखा रही है कि अब ऑन द अदर साइड क्या है, तो आप सब देखिए इनको, आप इनकी बातें सुनिए, आप देखिए द ग्लो ऑन हर फेस, द वे शी इज स्माइलिंग, आई मीन द वे शी इज हैप्पी अबाउट इट. एक बहुत लंबी जर्नी है यूजीसी नेट जेआरएफ की, बट देन वंस यू आर थ्रू इट, दिस इज व्हाट यू गेट. सो आपको याद रखना है, आपको विजुअलाइज करना है खुद को. I think that's very important. And Afnan, आपने बहुत एक interesting issue यहाँ raise किया, और वो ये है that when such issues with cycles arise, when such controversies happen, it is the student, it is the candidate, who is worst hit by it. जैसे कि मैं आपकी बातों से समझ पा रही हूँ, आप बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन कन्वे कर रही है हमारे सभी व्यूअर्स को, वो है सेल्फ डिसिप्लिन का और सेल्फ मोटिवेशन का. मुझे आपकी बातों से जो समझ आ रहा है वो यही है कि आपने अपने आप को हर वक्त सेल्फ मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रखा. जहां मोटिवेशन लो भी गया, आपने वहां से खुद को बकअप करके रेज किया, और यू वेंट थ्रू इट एंड
with all these flying colors now. That's beautiful. बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं मोटिवेशन के साथ और इंस्पिरेशन के साथ, एंड आपको वो किसी और में फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो आप में ही खुद है, और आप उसके रीजंस जगह जगह से ढूंढ सकते हैं। वो किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ हो सकता है। सो थैंक यू अफनान, बहुत अच्छा मैसेज है आपने सबको दिया है। यहाँ से अब मैं थोड़ा सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पे आना चाहती हूँ। इंग्लिश पेपर 2 की बात करते हैं। A very difficult area that we are tackling today is the area of chronology, these questions of chronology. So how did you go about with them? Chronology, first of all, I think I find these questions a bit absurd because I mean it really doesn't matter. I mean it does matter of course कि किस period में कौन सा work लिखा गया था, but to exactly pinpoint कि which year was it published in, before this or after that, I think that's the kind of questions जो बहुत नहीं होने चाहिए, but there's a sudden rising trend in it. Chronology, सबसे पहले तो मैंने आपसे शेक्सपियर ऑफ कोर्स इज द बेसिक जो आपको जानना ही जानना है किसी भी तरह, but then you told the Phases वाला hokum, हुक्म, हाँ। HOKM, right, hokum, and I was like hokum, and then I went about कि हाँ ठीक है भाई, खुद से कुछ तो बनाना पड़ेगा जिससे you have to learn the chronology because it's a rising trend and you can't skip that because इतने सारे questions इससे आने लगे हैं कि आप अगर सोचे भी कि नहीं छोड़ देंगे तो वो काफी सारे मार्क्स आपके इस चीज से जा सकते हैं। तो आई थिंक जो बहुत, फॉर एग्जांपल सलमान रुश्दी सॉन्ग बना के, कितनों के सॉन्ग्स बना के, कितनों की बहुत स्टोरीज बना के, आई थिंक आई वुड, और आई थिंक मैंने बस ये तो शेयर करना मेरे साथ। आई थिंक आई लव टू शेयर इट विद फ्यूचर स्टूडेंट्स। आई मीन because I'm bad with creating these acronyms. I'm bad as well. These acronyms, these mnemonics, I'm just too bad with them. To the extent I'm embarrassed to tell it to myself later in the period. मतलब मुझे बस उतने दिन के लिए याद थे जब तक एग्जाम है, और उसके बाद फिर it just out of my mind. So cheat codes. You worked with cheat codes. Cheat codes definitely. I think there's no other way out of chronology. आपको बिल्कुल, and in fact आप जैसे क्लास में गिराती हैं, so the good thing that I found with your lectures was that every time there was a work that came up, you would tell the year, you would tell the author, the period that the author belonged to, the other works that he wrote, the important, I mean classical works that he wrote. So बार-बार हर lecture में वो revise होता रहता है. So you suppose I saw 4 lectures per day or 5 lectures per day, 2 घंटे के, 1 घंटे के, आधे घंटे के, जैसे भी. So I kept it kept revising in my mind कि हाँ ठीक है, अभी ये मैम ने बताया था, ठीक है, थोड़ी बाद फिर बताया. So that's very important कि lectures के साथ आपको new information तो मिल ही रही है, but then जो पुरानी information है वो भी हम revise कर पा रहे हैं उसके साथ. So that helped me a lot कि आप लिखती थी टेक्स्ट का नाम बोर्ड पे, and I would say कि हाँ इसका ये ईयर है. पता है, that's nice. So ये मैं ट्रिक भी बताई थी कि आप अब सिर्फ टाइटल्स ना लर्न करें, आप टाइटल्स के साथ ईयर्स लर्न करने की आदत डालें, उससे आपको ऑटोमेटिकली, एंड यू कैन, मैं एक्चुअली यूट्यूब पे जितने भी क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराती थी, मैं कोई घर से ऐसे उनको ऐसे नहीं कि मैं देख के नहीं आती थी, ना मैं खुद कोई आंसर्स देख कर आती थी, मैं खुद लाइफ टाइम में मैं गलती भी कर देती थी, तो मैं यही बोलती थी कि इसको क्लासरूम की तरह मानो, कि एक्चुअली मान के चलो कि आप एग्जाम हॉल में हैं और मैं भी आपके साथ लाइफ टाइम में ही उसको सॉल्व कर रही हूँ। आपको अगर 1 या 2 वर्क्स भी पता है तो उसको हम अपना हुक बना के उसके अराउंड बाकी की चीजें कवर कर सकते हैं, और यही टेक्निक है क्रोनोलॉजी की। मैं आपको, आफ्नान, और मैं अपने सभी व्यूअर्स को बताना भी चाहती हूँ दैट फॉर द पास्ट 2 months आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस न्यू पॉकेट बुक ऑफ क्रोनोलॉजी, जिसको मैंने बिल्कुल रिसेंटली हमारे सिलेक्शन किट में लॉन्च किया है। सो अगर आप में से कोई भी हमारी यूजीसी नेट की बुक्स लेने में इंटरेस्टेड है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ वी हैव कम अप विद दिस सिलेक्शन किट एज वेल, जिसमें वी हैव द बुक्स। इसके अलावा जितने भी पेपर 1 की टीचर्स ने क्रैश कोर्स में जो अपने चीट कोड्स यूज किए हैं, जो बिल्कुल टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, उसको हमने चार्ट्स में पुट अप किया है। प्लस आफ्नान, आपने जो सेल्फ डिसिप्लिन दिखाया वो सब में नहीं हो पाता, सब अपने आप को वैसे डिसिप्लिन नहीं रख पाते, तो उसके लिए हमने प्रोग्रेस शीट्स भी उसमें ऐड की हैं। प्लस आई हैव कम अप विद दिस क्रोनोलॉजी का पॉकेट बुक. So I did see that pocket book, yes ma'am, and I think it's a brilliant idea, mainly because it's a pocket book, so you can literally carry it anywhere. And कभी-कभी होता है कि आप कहीं भी बैठे हुए होते हैं, एक टेक्स्ट दिमाग में आता है, and you're just like क्या year था, and then you can immediately take up and check it. So I think it's a brilliant idea to come up with a pocket book. Thank you so much. So I'm sure मैं
जब मैं सक्सेस स्टोरीज को देख रही हूँ, देखती आ रही हूँ, तो मैंने सभी टॉपर्स में कुछ क्वालिटीज को पिन पॉइंट कर लिया है, और कुछ लोगों में वो इंट्रिंसिक है जैसे आप में है, कुछ लोगों में वो इंट्रिंसिक नहीं है। तो एज अ टीचर मैं उनको एक्सटर्नली वो कैसे प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो सिलेक्शन बॉक्स को उसी नजर से बनाया गया है। खैर, तो ये यहाँ से बुक से आ जाते हैं, आपके पास हमारी अडा की बुक्स भी थी, तो Yes, आपने yes, बुक्स yes. के साथ कैसे स्टडी किया, बुक्स को कैसे यूज किया तैयारी में? So when I first saw your lectures on YouTube, I thought कि books तो I think I would definitely need, because self study भी के लिए भी किताबें तो चाहिए ही हर तरह से. So and then I saw the preview of your books. बिल्कुल उसमें I think obviously I didn't know what was inside it, but the index was just given Exhausting. as yes, it was just given as जैसे NTA ने syllabus दे दिया है, exactly to the point आपने उसमें दिखाया हुआ है कि there is drama, there is poetry. Plus my favorite was volume 4, जो उसमें questions हैं. It absolutely does wonders, to say the least. उसमें and I would make अपने खुद के short notes उस पे. Initially when I got the book, I started highlighting. And then I thought कि इसमें highlight करने का कोई फायदा नहीं है, because the entire book would be green. इतने crisp brief notes हैं वो, to the point. आपको बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना है कि अच्छा नहीं ये important line नहीं लग रही है, because you don't know what NTA is going to ask. So I stopped highlighting, and then जब मैं आपके lectures देखती थी तो वो लेके फिर मैं books में छोटे छोटे notes बनाती थी. Right. So I think it works both ways. आप book पढ़िए, आप lecture देखिए, उसमें से उठा के कुछ इसमें connect करें. Book का कुछ पढ़ा हुआ आप lectures में याद करें कि हाँ अच्छा हाँ ये तो पढ़ा हुआ है. So Right. books, I think ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप बुक्स का पीछा छोड़ ही नहीं सकते, ना बुक्स आपका पीछा छोड़ेंगी. True. जितनी True. भी आप पढ़ लें वो कम ही है. So I found your books definitely helpful. There's no doubt about that at all. Thank you. I would just, I mean, see the lectures, watch the lectures, get back to the book. कोई भी एक ऑथर पिक कर लिया, उसकी फटाक से समरी पढ़ ली, कोई यूनिट सॉल्व्ड क्वेश्चंस कर लिए कि हाँ ठीक है इस यूनिट से अभी डील कर. एंड प्लस द सिलेबस सिंस इट्स ह्यूज, आई थिंक इसमें एक तरह से फायदा भी मिलता है कि कभी आपको ड्रामा नहीं पढ़ने का दिल कर रहा है, आप पोइट्री उठा लीजिए. आपको ब्रिटिश लिटरेचर नहीं पढ़ने का दिल कर रहा है, आप अमेरिकन उठा लीजिए, इंडियन उठा लीजिए. सो आई थिंक इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव, how the person wants to approach this exam. That's all that matters, I think. बिल्कुल. आफ्नान, आपने बात की यहाँ पर कि आप हाईलाइट कर रही थी, तो आई एम श्योर हाईलाइटिंग का या स्टिकी नोट्स का पर्पस रहता है रिविजन्स का. तो रिविजन आपने बोला कि मॉक टेस्ट की रेलेवेंस की आपने बात की. हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक रिविजन इज इस एग्जाम के लिए? I think revision is the key to this exam, because आप कितनी भी न्यू इन्फॉर्मेशन पढ़ लें, एक पॉइंट पे आपने पढ़ ली वो पुरानी हो गई, बट वो पुरानी इंफॉर्मेशन आपको याद रह रही है नहीं, ये that's all that's going to matter in the exam. कि the and I think one of the reasons, जैसे मैंने बताया पहले कि सेंटर्स ऐसी जगह पे रखे जाते हैं जो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू रीच इजीली. The surrounding the environment is also, I think, created in a manner कि गर्मी लग रही है, पंखा चू चू कर रहा है, और इन्विजिलेशन सही नहीं हो रही है, कुछ कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है कई बार. सो द प्रेशर इज इमेंस. तो आई थिंक जो चेक करते हैं एनटीए इज मेनली कि आप उस प्रेशर में एग्जाम दे पाते हैं या नहीं, उस प्रेशर में आपको आंसर याद आता है कि नहीं. सो रिविजन, सम ऑफ माय फ्रेंड्स इन फैक्ट दे थिंक कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, चौसर, शेक्सपियर, सलमान रुश्दी, ये सारे ऐसे ऑथर्स हैं जो इतने एग्जॉस्टेड हैं और इन पे कहते हैं कि मतलब इनको इतना पढ़ लिया गया है कि अब ठीक है नहीं पढ़ना है. बट आपने भी बोला था ये कि चौसर एक ऐसा सब्जेक्ट है, समझ ले अपने आप में एक सब्जेक्ट है चौसर, कि उनको अगर आप स्किप करना भी चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं. अगर आपको नहीं भी लग रहा है कि अभी 3-4 साल में चौसर पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेट्स स्किप हिम. पर जिस दिन उन्होंने पूछ लिया चौसर पे, तो वो क्वेश्चंस नो मैटर कितने कॉमन लगे आपको, अगर कॉमन ही है तो फिर हो क्यों नहीं पा रहे हैं. कभी कभी हम मुश्किल सवाल के चक्कर में जो आसान सवाल होते हैं उनको आंसर नहीं कर पाते हैं, वी जस्ट नेग्लेक्ट देम. सो आई थिंक रिविजन इज द की टू दिस एग्जाम. आप कितनी भी न्यू इन्फॉर्मेशन ग्रास्प कर लें, इट विल ऑलवेज कम टू द पॉइंट कि आपको याद कितना रहता है एग्जाम देने वक्त. सो आई थिंक that's where revision comes into play.
Because also say it's a 100, एक तो 100% डिफाइन करना इज इम्पॉसिबल, बट लेट्स Impossible. अज्यूम कि एक 100% एक रेंज है और आप कुछ भी रिवाइज नहीं कर रहे हो, सो बाय द टाइम यू रीच टू योर एग्जाम हॉल यू विल ओनली रिटेन 30 to 40% ऑफ इट. हाउएवर ऑन द अदर हैंड से आपने 70% सिलेबस को टैकल किया, आपने उसको रिवाइज कर किया, तो आप उसमें से मान लीजिए 60% रिटेन कर पाए. सो एनीवे 60% इज बेटर देन 30%, है Of ना. course. Right. सो जो कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करो और उस पे ट्रस्ट रखो और कैनोनिकल पढ़ो और लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ो. Limited सो resources. Right. बिल्कुल. तो आई होप अफनान की मेरे सेशंस मेरी क्लासेस से आपको वो लिमिटेड रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट एरियाज में हाईलाइट कर पाई, बिकॉज मेरी कोशिश हमेशा, बिकॉज मैं पूरी जिंदगी कम पढ़ाई करके रिजल्ट निकालने वाली बच्ची थी, तो मैं अपने स्टूडेंट्स और अपने सभी लर्नर्स को लेकर भी सेम अप्रोच रखती हूँ कि किसी को मैं कुछ फालतू का काम ना दूं, ये कम से Exactly. कम पढ़ाई से इनका निकल जाए. सो उसके बारे में कुछ बताइए. आई होप आपको वो सब यूजफुल लगा होगा. मैम ऑलरेडी एज आई सेड इतना सब्जेक्ट वास्ट है कि आप कितना भी बताएंगी वो कम ही पड़ेगा. सो द रीजन आई स्टार्टेड वॉचिंग योर लेक्चर्स वाज एज आई सेड कि आप एक क्वेश्चन में आई थिंक 10-12 क्वेश्चन आ जाते थे वो किसी भी तरह से रिलेटेड. एंड व्हाट आई पर्सनली फाउंड यूजफुल वाज कि यू वुड टेल स्टोरीज कि टेल ऑफ टब में जैसे एक बार आपने बताया था कि हाँ ये सी एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है, इसमें जब एक डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वेल को या बटरफ्लाई को, राइट. एंड आई वुड थिंक कि ये स्टोरी मुझे याद रहेगी. सो एनी टाइम समथिंग रिलेटेड टू दिस कम्स अप आई नो आई विल बी एबल टू आंसर. एसोसिएशन बिल्ड हो जाता है. एसोसिएशन विल डू दैट. इसी तरह हमें जैसे कि अब कभी कभी ये होता है कि हमें अगर हमने किसी किताब से कुछ पढ़ा हुआ है, सो आई रिमेम्बर पेज नंबर क्या है, आई रिमेम्बर लेफ्ट पेज पे राइट पेज विजुअल पे. मेमोरी में विजुअल विजुअल मेमोरी. मेमोरी डेफिनेटली. सो फ्लो चार्ट्स, विजुअल मेमोरी, क्रोनोलॉजीज आपकी बुक में जैसे फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे डू यू नो के बॉक्सेस हैं, चेक योर प्रोग्रेस के बॉक्सेस हैं. entirely helpful. I think there will always be two kinds of students. One who will think कि अरे नहीं बहुत ये बुक अच्छी नहीं है, अब्राहम्स तो सब पढ़ते हैं ये अच्छी नहीं है, पीटर बैरी अच्छी नहीं है, राउटलेज मुझे समझ में नहीं आई. There will always be students who will say कि नहीं जो भी बुक है no matter what it is, कोई भी तरह की बुक हो, no matter how difficult or easy, I have to read it, I have to gain information from it, I will take my knowledge and then I will leave the book. Absolutely. So it depends on the student, the perspective, the mental preparation that it takes, the self-discipline, the motivation it takes, and also the resources you refer to. I would, if I had to give this exam, मतलब मैंने तो ये ठान के रखा हुआ था कि अगर फिर भी by chance नहीं निकला इस बार, I'm going to stick to Aishwarya Ma'am no matter what the result is, no matter what the result is, because I know how much it helped me. I know my progress. I saw myself कि मैं 4 महीने पहले क्या थी. Throughout your lectures, रोज 10-10 घंटे same lectures देखना is not an easy thing. But I know what my progress is. ये तो कमाल कर दिया आपने. मतलब आप जो बता रही है ना कि अब दिन में इतने लेक्चर्स, मैं आज इमेजिन करूं कि मैं किसी के क्या बैठ के इतने लेक्चर्स देख सकती हूँ. आई डोंट थिंक आई हैव द कैपेसिटी टू डू इट. व्हाट यू हैव डन, इट इज अ सुपर ह्यूमन थिंग दैट यू हैव no, सुपर ह्यूमन थिंग आप लोग कर रहे हैं टू टीच. आई वुड से कि मैं एक बार ना ऐश्वर्या मैम की वीडियोस के एंड में जाना चाहती हूँ, इस प्लेलिस्ट के एंड में जाना है मुझे कि लास्ट वीडियो क्या है बिल्कुल. And I would get exhausted, but just then I would touch कि हाँ बस अब 4-5 वीडियोस और बचे हैं, this playlist is over. I would be on top of the mountain कि आज ठीक है, I've done this, I've cracked this milestone कि हाँ ऐश्वर्या मैम का ये last lecture है, and then this playlist is over. binge watch definitely. नेट के प्रिपरेशन में Amazon Prime सुन लीजिए प्लीज. Netflix, Amazon Prime, I'm like tata bye bye. Aishwarya Ma'am's lecture binge watch till the result is out. अरे यार, मैं आपसे जितना बात भी कर रही हूँ ना, आपका जो अपनी लाइफ को लेकर भी मुझे जो एटीट्यूड समझ आ रहा है, आप मुझे ये आपको याद होगा मैं एक और चीज बोर्ड पे लिखती थी, मैं बड़ा बड़ा कैपिटल्स में लिख देती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं बोलती थी कि देखो मेरा काम तुम्हें बताना, दिखाना, पढ़ाना सब है. एट द एंड ऑफ द डे योर रिजल्ट दिस इज, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर रिजल्ट.
now that I'm talking to you, I'm realizing how seriously you took that advice and you were very responsible about your own life, your own decisions, your own choices. And I'm just feeling happy because अभी तो आप एक PhD स्कॉलर हैं and इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप उसको कंप्लीट करें, आप जिंदगी में जितने मुकाम आप जो जिस मुकाम पर पहुंचना चाहती हैं आप पहुंचे। पर मैं जरूर चाहूंगी कि आप टीचिंग मतलब जितना भी आप रिसर्च में आगे से आगे बढ़ें, ग्रेट, बट टीचिंग में आप जरूर आना बिकॉज आई फील आपकी एक एनर्जी है जो बहुत कॉन्टेजियस है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स आपसे इन फ्यूचर पढ़ेंगे वो बहुत कुछ नया सीख पाएंगे, वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे। सो Even talking to you right now feels like कि मैं हमेशा आपसे बात करती भी आई हूँ, इतने मैंने lectures देखे हैं आपके, I think it just doesn't seem something new to me. It's like हाँ अच्छा, obviously it's a big huge thing for me to one-on-one talk to you in person. I mean it's I think this is just, I think I had this at the back of my mind कि I probably didn't even think कि कभी ऐसा होगा that I would be interacting with Aishwarya Ma'am, and it's literally a dream come true, ma'am. So I have always wanted to thank you for the amount of hard work you put. Obviously ये हमारा एग्जाम है, हम पे डिपेंड करता है हम कितनी एनर्जी कितना हार्ड वर्क लगाते हैं इसमें, बट द काइंड ऑफ थिंग्स यू डू फॉर इट, जैसे कि मैंने बोला कभी कभी आपके यूट्यूब के जो थंबनेल्स होते हैं या जो उस पर लिखा हुआ होता है, आई डिडंट नो दैट आई नीडेड दैट। मुझे नहीं पता होता था कि हाँ मुझे इस रिवीजन की इस वक्त जरूरत है, मुझे नहीं पता होता था कि हाँ मुझे इस टाइम पे दलित लिटरेचर या इंडियन लिटरेचर या ये रिवाइज कर लेना चाहिए, एंड आई वुड सी एंड आई वाज लाइक हाँ नहीं ये तो करना है, ये कैसे जहन से निकल गया, ये कैसे नहीं याद आया कि करना है। सो दैट हैज अ वेरी डीप इम्पैक्ट कि हमसे ज्यादा आपको ख्याल रहता है कि स्टूडेंट को किस चीज की जरूरत हो सकती है। सो यू ऑलवेज वन स्टेप, ऑफ कोर्स यू आर अ टीचर, यू विल ऑलवेज बी अ स्टेप अहेड ऑफ अस। मैं आपको प्रॉमिस करके बता सकती हूँ अफनान की आई डोंट नो कि बाकी कहाँ कैसे क्या चलता है, आई डोंट नो अबाउट इट, बट ये चैनल इज इट्स comparatively new, as you know, just 2 years back we started this channel, and the reason that today we have become the biggest subscriber base India में किसी भी UGC NET channel में we have become the biggest one, उसका रीजन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है बिकॉज इवन वाइल हायरिंग आई डू हैव अ वर्ड विद हुएवर, लाइक जो भी कोई नया टीम में आता है द फर्स्ट डे वी हैव अ वर्ड विद देम, the idea is to find those people who are passionate about others results. So the idea is not कि भाई YouTube का सेशन चल रहा है या ये करना है वो करना है, it's not just that. Trust me, जब वो सारा fiasco हुआ around the June attempt, we were depressed. मैं हफ्ते की छुट्टी ले ली थी बीच में, I started having autoimmune reactions in my body. I got sick around it because I was so stressed out because पहले crash course में इतनी मेहनत की, फिर that failed and we passed to the protest as well. So take my word on it. हमारे इस चैनल पर हमारे सभी फैकल्टीज पेपर 1 पेपर 2 की सभी आपके रिजल्ट को अपना रिजल्ट बना के ही पढ़ाते हैं, एंड इसी लिहाज से अब हम आगे और जिन चीज़ों में वेंचर करना चाह रहे हैं वो है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स और उनके इंटरव्यूज़ के मॉक्स, जिसकी बहुत ज़रूरत रहती है कैंडिडेट्स को, उनको पता नहीं है कि इंटरव्यूज़ में क्या होता है। प्लस आप तो खैर यू द लकी वन, आप हैं ऑलरेडी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से PhD परस्यू कर रही हैं, बट इस बार पहली बार हमें स्कोर मिला है PhD का, सो बहुत सारे लोग अभी उस स्कोर के साथ अपीयर करेंगे अपने यूनिवर्सिटी एडमिशन में, तो वहां पर भी अब हम आपका साथ देना चाहते हैं और पूरी पूरी मदद करेंगे आपके साथ रहने की। That's great, ma'am. Talking about paper 1, I would personally like to thank Ravi sir. His data interpretation, I mean, he's the reason I could do data interpretation. Data interpretation एक ऐसे questions हैं, type of questions, या तो आपको आते हैं या तो आपको नहीं आते हैं. Either you get all the 5 right or you get none of them at all. So रवि सर ने वो जो डर होता है डेटा इंटरप्रिटेशन का, मैथ्स है बहुत मुश्किल है, टेबल है, पाई चार्ट आ गया, इस बार परसेंटेज में पूछा गया है, he took that fear out of me to the point कि अब मैं डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाती हूँ अपने फ्रेंड्स को. So I'm eternally grateful to him. Brilliant. Yeah, everybody just comes up with the data interpretation. I'm like, data interpretation ये तो मैं आपको करके बता दूंगी. I think I will know how to do it. And Anshika ma'am, people and environment, higher education. Your team is doing a brilliant job, to say the least, ma'am. I think you barely have an idea how much impact you all have on students' minds. We're eternally grateful to you. That was the plan, and I'm so glad कि आप like you said, you're on the other side now.
So it just feels so great. मैं आपको बताना चाहती हूँ that on the 9th of November we are hosting a felicitation ceremony हमारे head office में in गुड़गांव. So आपको welcome करना चाहती हूँ, आपको invite करना चाहती हूँ. उसके लिए आपने ज़रूर यहाँ पर आना है हमसे मिलने. और मैं कभी कश्मीर नहीं गई तो बहुत जल्द मैं आई होप कभी मैं उस तरफ आऊँ तो आपसे मुलाकात, आपके पेरेंट्स से भी मुलाकात करना चाहूँगी. Right, definitely, ma'am. Perfect. So thank you so much Afnan for joining with us. I'm sure हमारे learners ने आपसे बहुत कुछ learn किया होगा. और सबसे जरूरी बात जो आपको इनसे learn कर लेनी चाहिए, जितने भी लोग ये session देख रहे हैं अभी, is that she took responsibility of her own subject, of her preparation, of her result, and she knew exactly what to do about it. And moreover she trusted me. And बात ये नहीं आप मेरे session देखें, आपको जिस teacher के साथ एक connection feel हो रहा है, you hold on to that one teacher and वो जो पढ़ा रहा है फिर उस पर ट्रस्ट रखें and go through with it. And ऐसा हो ही नहीं सकता फिर रिजल्ट आपको ना मिले. So thank you so much Afnan, have a very good day and मिलते हैं आपसे बिल्कुल face to face मुलाकात. I would just say to everyone seeing this, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है. So this sham, I hope it passes for you really, really soon, और सुबह हो जाए आपके लिए. It's a beautiful world out here. I wish everyone all the very, very best, and just stay motivated. इसी प्यारे से नोट पे I don't think मुझे कुछ और बोलने की जरूरत है. Thank you so much, ma'am. Thank you so much everybody. Thank you for having me.